اردو کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس کے اندر یہ آج کی ویڈیو 5ویں ویڈیو ہے، جس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رموز اوقاف کو۔ ایم پی ٹی، پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی میں جو سنگل پیپرز ہیں ان کے حوالے سے یہ سیریز کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کافی اچھا کانٹینٹ اتھینٹک ریسورسز سے آپ کو ملے گا، جس کی پریپریشن سے آپ آسانی کے ساتھ ایم پی ٹی میں اردو کا جو پورشن ہے اس کو کریک کر سکتے ہیں۔ بنا کسی تشریح کے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو، کہ جس کا ٹاپک ہے رموز اوقاف۔ یہ رموز اوقاف بیسیکلی یہ وہی ٹاپکس ہیں جو آپ انگلش کے اندر پنکچویشن کے نام سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ نے ڈیٹیل کے اندر ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں پہ انگلش میں آپ نے پڑھا ہے اور یہاں پہ ہم ان کو اردو میں ڈسکس کریں گے۔ ہم تھوڑا بہت ان کا ہنٹ جو ہے وہ سٹارٹ میں لگاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو انگلش کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ برقرار رہے۔ جو سب سے پہلا رموز اوقاف کے اندر سیگمنٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے یا جو ہم رموز پڑھیں گے وہ ہے ختمہ۔ ختمہ آپ انگلش کے اندر فل سٹاپ کے نام سے پڑھتے آئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اور اس کو شو کرتے ہیں ڈاٹ کے ساتھ انگلش میں، جبکہ اردو میں تھوڑا سا ڈاٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، جیسا کہ میں ایگزامپلس کے اندر اس کو ڈسکس کروں گا بھی، جس سے جملہ کے آخر پہ اختتام کے وقت اس کو لگایا جاتا ہے۔ ختمہ کا دوسرا نام کامل وقفہ ہے، اور یہ کئی دفعہ ایم سی کیوز پوچھا جا چکا ہے کہ بتائیں کامل وقفہ بیسیکلی کیا ہے۔ وہ علامہ اس کے ایم سی کیوز میں وہ فردر جو ایم سی کیوز ہیں وہ دے دیتا ہے آپشنز میں، سکتہ، رابطہ، ختمہ۔ تو اس میں یا نیم وقفہ، تو آپ نے ختمہ کے اوپر جو ٹک لگانی ہے، یہ کریکٹ آپشن ہوگا اس کا۔ ختمہ سب سے بڑا ٹھہراؤ ہے اور جملے کے اختتام کے اوپر آتا ہے۔ یہ یا جملوں میں پوچھا جاتا ہے زیادہ تر، یا مخففات کے درمیان میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ڈسکس کریں جملہ، تو حیدر نے چائے پی۔ اب یہ ایک مکمل جملہ ہے، اور جملے کے اختتام کے اوپر ہم ختمہ جو ہے تھوڑا سا پوائنٹ سے بڑا یہ ہم ڈرا کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بات کا اختتام کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے علی سکول جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، تو مکمل بات کے آخر پہ ہم کیا لگا دیں گے؟ ختمہ کی علامت۔ دوسری چیز جہاں پہ ختمہ استعمال ہوتا ہے مخففات ہیں۔ تو مخففات میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے پی پی ایس سی کو انگلش میں لکھنا ہوتا تھا تو آپ لکھتے تھے پی پی ایس سی، یعنی اسی طریقے سے آپ نے ایم بی اے کو لکھنا ہوا ہوتا تھا تو آپ ایم بی اے، یعنی انگلش کا یہ ایک رول تھا کہ مخففات کے درمیان میں فل سٹاپ لگائیں۔ اسی طریقے سے اردو میں بھی مخففات کے درمیان میں ختمہ لگایا جاتا ہے، یہ کامل وقفہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ پی، اس کے بعد ختمہ، پھر پی، پھر ختمہ، ایس، ختمہ، اینڈ سی۔ تو یہ کچھ اس کے بنیادی استعمال ہیں جہاں پہ ہم ختمہ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس ختمہ سے مراد کیا ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ دوسری علامت جو ہے وہ سکتہ کی ہے۔ سکتہ جو ہے اس کی وہی یوزیج ہے جو انگلش کے اندر کوما کا رہا ہے، یعنی فل سٹاپ سے کم وقفہ تھا، یہ سب سے کم وقفہ جو تھا وہ کوما کا تھا۔ تو سکتہ کو اس کی علامت وہی ہے جو کوما کی اس طریقے سے الٹی تھی، چونکہ انگلش کا جو ہم نے اس کو سٹرکچر تھا وہ اس طریقے سے تھا، تو ہم علامت ایسے لگاتے تھے وہاں پہ، اور یہاں پہ اس کا سائن ذرا الٹا ہے۔ تو چونکہ اردو کا سٹرکچر جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ کو آتا ہے، اور انگلش کا سٹرکچر لیفٹ سے رائٹ کو تھا۔ سب سے چھوٹا ٹھہراؤ ہے، یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں کلمات یا جملے کے کچھ حصوں کو دہرایا جائے۔ مثلا علی، حیدر، وقاص اور احمد اسکول گئے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی، حیدر، وقاص یہ نون ہیں جن کو ریپیٹ کیا گیا ہے، یا نون ہیں جن کو ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، لیکن ان کے درمیان میں کلمات کے درمیان میں ہم نے کیا لگایا ہے؟ ہم نے سکتہ لگایا ہے۔ تو سکتہ بنیادی طور پہ جب ایک سے زیادہ کلمے استعمال کیے جائیں اور بنا کسی عطف، حروف عطف کے ساتھ اس کو بنا کسی حروف عطف کے ان کو استعمال کیا جائے، تو ہم وہاں پہ درمیان میں سکتہ کی علامت لگاتے ہیں۔ دوسرا بنیادی استعمال اس کا ندائیہ الفاظ کے بعد ہے۔ مثلا آپ نے درخواست کے اندر پڑھا ہوگا
कि दरखास्त के अंदर हम जब जनाब सदर लिखते हैं तो जनाब सदर के बाद निदाइया अलामत की बजाय हम सख्ता का या कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में कॉमा एंड उर्दू के अंदर सख्ता इसको कहते हैं। तीसरा इसका बुनियादी इस्तेमाल जुमलों के दरमियान राब्ते के लिए है कि दो या दो से ज्यादा जुमले अगर आप बनाते हैं तो उनके दरमियान राब्ते के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सख्ता को। और इसकी एग्जाम्पल भी ऐसे है कि चूंकि वो बीमार था इसलिए वो कॉलेज नहीं आया, तो चूंकि वो बीमार था इसके बाद हम सख्ता की अलामत लगा देंगे और उसके बाद इसलिए कॉलेज नहीं आया, तो ये दूसरा इसका पोर्शन हो गया। अच्छा, जुमलों के दरमियान तशरीह के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और ये ऐसा है कि हैदर उसके बाद कॉमा और जो कि एक ज़हीन बच्चा है अब ये इजाफी तौर पे हमने तशरीह की है एक लफ्ज हैदर की जिसको ओवरऑल हटाने से जुमले पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आज कॉलेज से गैर हाजिर है। तो इस तरीके से हम जुमले के दरमियान के अंदर एक इजाफी तशरीही जो जुमला है उसका भी लगा सकते हैं और उस जुमले को हम सख्ता के जरिए आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है वो ये है कि ये छोटे हम रुतबा फिक्रों के दरमियान इस्तेमाल होता है और इसकी मिसाल कुछ ऐसे लें कि बादल आए, उसके बाद सख्ता छोटा सा जुमला है, हवा चली और इसके बाद अगेन आप देखें कि हवा चली और उसके बाद बारिश हुई। अब छोटे छोटे जुमले हैं और हम रुतबा जुमले हैं लेकिन इनके दरमियान में इनकी कनेक्टिविटी बरकरार रखने के लिए हमने किसको लगाया है, हमने सख्ता की अलामत को लगाया है। जो हमारा लास्ट इस्तेमाल है सख्ता का वो फिक्रा खास और फिक्रा है तबैया के दरमियान में है, यानी फिक्रा ताबे एक खास पोर्शन होगा और दूसरा पोर्शन उसको ताबे करेगा। जैसे कि चूंकि वो बीमार था और इसके बाद कॉमा लगाएं इसलिए कॉलेज नहीं आया। यहां पे आपकी दो चीजें जो हैं वो कवर हो रही हैं। एक तो जो हमने पढ़ा कि जुमलों के दरमियान राब्ते वाला सीन है, दो जुमले हैं और जुमलों के दरमियान में राब्ता सख्ता जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा है और दूसरे तरीके से ये हमारे पास जो फिक्रा खास और फिक्रा ताबे है उनके दरमियान में फिक्रा खास ये है कि वो कॉलेज नहीं आया। अब वो किसके ताबे है, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो कॉलेज नहीं आया। तो इन दोनों के दरमियान में भी हमने कौन सी अलामत लगाई है, हमने इन दोनों के दरमियान में सख्ता की अलामत इस्तेमाल की। ये बुनियादी इस्तेमाल है सख्ता का और खत्मा का और इनका वही रोल है जो इंग्लिश के अंदर हमारे पास फुल स्टॉप और कॉमा का इस्तेमाल रहा है। नीम वक्फा का अगेन वही रोल है यहाँ पे जो इंग्लिश के अंदर सेमी कॉलन का रहा है। सेमी कॉलन ऐसे ही उर्दू में नीम वक्फा अपना रोल प्ले करता है। नीम वक्फा को उसी अलामत से जो सेमी कॉलन की थी, लेकिन यहाँ भी अगेन आप एक फर्क ज़हन में रखिएगा, सेमी कॉलन इंग्लिश में इस डिजाइन के अंदर मौजूद है और उर्दू के अंदर ये इस निशान में पाया जाता है। ये इसकी अलामत कुछ इस तरीके से है और इन दोनों की अलामत में जो फर्क हमें नजर आ रहा है वो भी इस बुनियाद पे यह है कि इंग्लिश जो है वो लेफ्ट से राइट को आती है जबकि उर्दू जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। इसलिए इन दोनों की अलामत के अंदर हमें ये फर्क वाज़े नजर आता है। सख्ता, ये नीम वक्फा जो है ये सख्ते से ज्यादा वक्फा है, यानी राब्ता से कम है, लेकिन सख्ता चूंकि सबसे छोटा वक्फा है तो ये उससे ज्यादा वक्फा है। ये नीम वक्फा इस्तेमाल होता है लंबे लंबे हम रुतबा जुमलों के दरमियान में। ऐसे जुमले जो एक ही मर्तबे के हों, जो एक ही रुतबे के हों, उनके दरमियान में हम नीम वक्फा को इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल कुछ ऐसे लें कि वो अक्लमंद और सखी था, इसलिए हम उसकी इज्जत करते थे। यानी आप यहां पे देखें तो एक जुमले का हिस्सा है वो अक्लमंद और सखी था,
जबकि दूसरा इसलिए हम उसकी इज्जत करते थे। ये दो जुमले हैं जो हम रुतबा हैं, और इनके दरमियान में जो अलामत हमने इस्तेमाल की है, ये अलामत यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे ये अलामत नीम वक्फा की है, जो कि सख्ता से ज्यादा ठहराव के लिए है। दूसरा नीम वक्फा वहां पे इस्तेमाल होता है उन जुमलों के दरमियान में जिनमें हरफे अतफ ना हो। हमने सख्ता के अंदर भी पढ़ा कि छोटे छोटे जुमले जिनमें हरूफे अतफ मौजूद नहीं है, वहां पे भी हमने सख्ता को इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अगर जुमलों के दरमियान में हरफे अतफ ना हो, कलमों के दरमियान में ना हो, तो सख्ता इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर जुमलों के दरमियान में ना हो तो हम वहां पे सेमी कॉलन को यानी नीम वक्फा को इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि जो मेहनत करेगा, अब यहां पे आपने अलामत लगानी है नीम वक्फा की, कामयाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे हरूफ अत्फ मौजूद होते, जैसे कि जो मेहनत करेगा वो कामयाब, या जो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, तो आपने कनेक्टिविटी में कोई हरफ अत्फ लेके आते तो फिर तो ऐसे ही था कि ये जुमला करेक्ट था। लेकिन अब इसके अंदर हरूफ अत्फ मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम किस अलामत को लगाएंगे? हम नीम वक्फा की अलामत को लगाएंगे। जो अगला हमारी अलामत है वो राब्ता है। राब्ता का वही रोल है जो इंग्लिश के अंदर कॉलन का रहा है, यानी ये डबल डॉट से, इसमें कोई स्ट्रक्चर की वजह से हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, चूंकि दोनों डॉट ही हैं। इसकी दूसरे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एमसीक्यूज पेपर में आ भी चुका है तफसीरिया के नाम से, कि ये राब्ता जो है इसको तफसीरिया भी कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर के अंदर कि राब्ता का दूसरा नाम क्या है? तफसीरिया है, ये याद रखिएगा। अच्छा, राब्ता जो है ये नीम वक्फा के ठहराव से ज्यादा मगर खत्मा से कम है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो नीम वक्फा जो था वो सख्ता से ज्यादा वक्फा है, और राब्ता जो है ये नीम वक्फा से भी ज्यादा ठहरा हुआ है, जबकि खत्मा से कम है। ये साबका जुमले की तशरीह या तस्दीक के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि क्या खूब सौदा नकद है, उस हाथ दे इस हाथ ले। अब देखें यहां पे साबका जुमला क्या था? क्या खूब सौदा नकद है, और उसके बाद उसकी तशरीह क्या थी? उस हाथ दे इस हाथ ले। तो यहां के इन दोनों के दरमियान में हम राब्ता की अलामत को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जहां पे राब्ता इस्तेमाल किया जाता है, ये मकौले या कहावत से पहले है, जैसा कि सच है, यहां पे राब्ता जो बोएगा काटेगा। अगेन इन दोनों के दरमियान में कॉमा आपने लगा के, सख्ता लगा के इसकी कनेक्टिविटी को बरकरार रखना है। इसी तरीके से अगर हम किसी फरमान को लिखते हैं, जैसे कायद आज़म ने फरमाया, और इसके बाद हम अगेन लगाते हैं राब्ता को, काम काम और बस काम। तो अब यहां पे आप देखें कि दो तीन बुनियादी जगहों के ऊपर हम राब्ता को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक किसी मुकौले या कहावत के दरमियान में राब्ता का इस्तेमाल है, और दूसरा चूंकि ये मुकौले और कहावत वाला बहुत यूजुअल है, लोगों को इसके बारे में इल्म होता है, लेकिन जहां पे लोगों को ज्यादा इल्म नहीं है वो पहले वाला इसका हिस्सा है, जैसे आपके जुमले की तशरीह या तस्दीक के वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पास्ट पेपर के अंदर एक और पैटर्न बड़ा ऑब्जर्व किया गया है एमसीक्यूज में, और वो ये है कि आप इनको तरतीब दें कि कौन सा वक्फा सबसे बड़ा है और कौन सा उससे छोटा है और कौन सा उससे छोटा है। तो अगर इसको देखें तो हम कुछ इस तरीके से इनकी तरतीब बना सकते हैं कि सबसे बड़ा वक्फा जो है ये खत्मा है। खत्मा सबसे बड़ा वक्फा है, सबसे बड़ा ठहराव है फुल स्टॉप जिसे हमने कहा, और फुल स्टॉप से कम ठहराव है जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं राब्ता। राब्ता बेसिकली जो हमारे पास नीम वक्फा है उससे भी ज्यादा ठहराव है। अब राब्ते से कम ठहराव है नीम वक्फा का, और नीम वक्फा से भी कम ठहराव है हमारे पास सख्ता का। तो ये एक इनका सीक्वेंस है ठहराव के हवाले से, एक इनका सीक्वेंस है कि कितना हमने इनके दरमियान में
गैप देना है या कहाँ पे इनका इस्तेमाल करना है, इसको लाजमन याद रखिएगा। ये पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हुआ है, इवन स्क्रीनिंग टेस्ट में भी इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहे हैं। बताएं नीम वक्फा ज्यादा ठहराव का है या राब्ता है, या इनको तरतीब में बताएं कि सबसे कम ठहराव किस में है या सबसे ज्यादा ठहराव किस में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस राब्ता, नीम वक्फा, सक्ता और खत्मा के हवाले से एमसीक्यूज या एग्जांपल्स थी या एक्सप्लेनेशन थी जो पेपर में पूछी जा सकती है। तफसीलिया आप इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेनेटरी साइन के साथ इसको पढ़ते रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी साइन यानी डिटेल के अंदर अगर आपने किसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो जो अलामत इस्तेमाल की जाएगी वो तफसीलिया की होगी। और ये अलामत इंग्लिश में चूंकि फिर स्ट्रक्चर की वजह से इसको ऐसे लिखते थे और यहाँ पे स्ट्रक्चर की वजह से इसको उल्टा लिखेंगे, यानी एक कॉलन है और कॉलन के साथ खत्मा है, और ये शो कर रहा है कि बहुत डिटेल में आप जाके डिस्कस करने जा रहे हैं जो चीज भी आप बयान करने लगे हैं। ये अलामत इस्तेमाल होती है बड़े इक्तबास या फहरिस्त के बाद। बड़े इक्तबास किस हवाले से कि अगर कोई भी इक्तबास आ जाए कि सर सैयद फरमाते हैं, अब सर सैयद ये अब उनके मजमून की बात हो रही है और मजमून में आगे चल के वो बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा इक्तबास है, एक पैराग्राफ है जिसको वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आपने इसके बाद जो अलामत लगानी है ये तफसीलिया की होगी और फिर इसमें तफसील स्टार्ट हो जाएगी कि सर सैयद क्या फरमाते हैं किसी भी मौजू के बारे में, तो वो इसमें एक्सप्लेन होगी। दूसरा ये कि फरिस्त अगर आपने बतानी है किसी चीजों की, मसलन मैं बाजार गया और मैंने खरीदा, अब आपने खरीदी हुई चीजों की फरिस्त बता रहे हैं तो उसके अंदर आप ये तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और यहाँ पे आप उनकी जो तफसील है वो देना स्टार्ट कर देंगे और बुलेट्स की सूरत में दे दें या वैसे उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। जो दूसरी अलामत यहाँ पे तफसीलिया को इस्तेमाल किया जाता है, ये एक ही जुमले के अंदर अगर कई बातें मुसलसल पेश करनी हो तो वहां पे भी हम तफसीलिया की अलामत को यूज करते हैं, जैसे कि मेरा रोज का मामूल है। अब आपने अपने मामूल को एक्सप्लेन करना है तो तफसीलिया अलामत हो जाएगी कि मैं सुबह तड़के उठता हूं, सैर को जाता हूं। अच्छा, सख्ता के जरिए आप जुमलों को आपस में मिलाते रहें क्योंकि यहां हम रुतबा जुमले हैं। नाश्ता करता हूं और स्कूल जाता हूं। तो इस तरीके से दूसरे के अंदर हमने अपनी कई जो बातें थी एक तसलसल के अंदर उनको आपस में कनेक्ट किया तफसीलिया अलामत के जरिए, और पहले में एक किसी इक्तबास को या किसी भी फरिस्त को एक्सप्लेन करने के लिए हमने तफसीलिया अलामत का इस्तेमाल किया। जो अगली हमारी अलामत है वो इस्तिफामिया है। इस्तिफामिया अलामत बहुत आसान है, जहां भी सवाल होगा इस्तिफामिया अलामत इस्तेमाल की जाएगी। इंग्लिश के अंदर अगेन इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि उर्दू में इसका साइन उल्टा है, इसको भी ज़हन में रखिएगा। एमसीक्यूज में एक दफा आ गया था कि बताएं इनमें से करेक्ट उर्दू के अंदर इस्तिफामिया अलामत कौन सी है, तो ये वाली करेक्ट है ना कि ये। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर मोस्टली इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन मार्क को, जबकि उन्हें मालूम नहीं होता, स्टूडेंट्स के ज़हन से यह निकल जाता है कि उर्दू के अंदर क्वेश्चन मार्क को स्ट्रक्चर के लिहाज से उससे उल्टा करके लिखा जाता है। और क्वेश्चन मार्क के अंदर कोई भी सवाल है, क्या आपने खाना खाया, अब इस क्वेश्चन के आखिर पे आपने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, तो आपका जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया और इस साइन का प्रॉपर इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे फिजाइया के कई नाम हैं जिससे इनको याद किया जाता है। फिजाइया के नाम से भी, निदाइया के नाम से भी, इन दोनों के नामों से कई दफा ये अलामत जो है पास पेपर्स के अंदर आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सक्लेमेटरी साइन जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, उर्दू के अंदर उसको फिजाइया कहते हैं, एक्सक्लेमेशन को, और इसको शो करते हैं अगेन इस साइन के साथ। इस साइन का भी स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों तरीके से एक ही तरह लिखा जाएगा। ये इस्तेमाल होता है वहां पे जहां अल्फाज और फिक्रात के दरमियान में कोई जज्बा या दिली कैफियत का इजहार किया जाए। मसलन आहा, यानी आपने खुशी का इजहार किया और उसके साथ आपने एक्सप्लेनेशन दी कि बारिश का मौसम बन रहा है, और खत्मा के जरिए इसको इख्तिताम किया। तो बेसिकली आपने क्या किया है कि आपने दिली कैफियत को इजहार किया यहाँ पे, या आपने किसी जज्बे की
عکاسی کی ہے اور اس کے درمیان میں فجائیہ علامت کو استعمال کیا. جب فجائیہ علامت کو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ خوشی کے الفاظ کے درمیان بھی ہوتا ہے اور جو افسردگی کے الفاظ ہیں وہاں پہ بھی استعمال میں ہوتا ہے، جیسے کہ افسوس یا صد، افسوس یا حیف، صد حیف، ان کے ساتھ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک علامت، ایک افسوس کا اظہار کیا، یہ بھی ایک جذبہ ہے افسوس کا اظہار کرنا، اور اس کے بعد بھی ہم نے جو علامت استعمال کیا وہ یہاں پہ واضح ہے. دوسرا جہاں امپورٹنٹ پورشن یہ ندائیہ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ندا کے بعد اگر کسی کو آواز دی جائے یا کسی کو پکارا جائے تو پکارنے کے بعد بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ حیدر، اس کے بعد آپ اس الفاظ کو لگائیں، اس گرمی میں باہر مت جاؤ. تو یہاں پہ بھی ہم نے ندائیہ کے طور پہ اس علامت کو استعمال کیا ہے. فجائیہ ہو یا ندائیہ، یہ پاسٹ پیپرز کے اندر بہت امپورٹنٹ پورشن رہا ہے، آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اور بھی پاسٹ پیپر کے MCQs نکالیں اور ان کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں. جو سیریز میں نے دی ہوئی ہے، اگر آپ نے ابھی تک وہ پچھلی پریکٹس کے MCQs نہیں دیکھے تو اوپر لنک آپ کو شو ہو رہا ہوگا، آپ اس لنک پہ جائیں اور دوبارہ ان تمام MCQs کو نکالیں جو پاسٹ پیپر کے حوالے سے میں نے کچھ ڈسکس کیے ہیں گرامر کے. جو ہماری نیکسٹ علامت ہے وہ کوسین کی ہے. اس کو بریکٹ کے نام سے انگلش میں یاد کیا جاتا ہے، چونکہ بریکٹ کا بھی اسٹرکچر پہ کوئی اثر نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اسٹرکچر کے. جملے میں توضیح دینے کے لیے کہ اگر آپ تشریح دینا چاہ رہے ہیں جملے کے اندر تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے پیچھے بھی ایک ایگزامپل ڈسکس کی کہ حیدر، وہاں پہ ہم نے سکتہ کی مدد سے کہا، اب ہم اس کو بریکٹ میں کر لیتے ہیں کہ جو کہ ایک ذہین بچہ ہے، کئی دنوں سے بیمار ہے. دیکھیں یہاں پہ ہم نے حیدر کی تشریح میں یا توضیح میں یہ پوری ایکسپلینیشن دی ہے جو کوسین کے اندر یا بریکٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا، اگر آپ اس بریکٹ کے اندر والے جو جملہ ہے اس کو چھوڑ بھی دیں، جو کہ تشریحی یا توضیحاتی جملہ ہے، آپ اس کو چھوڑ بھی دیں تو اوور آل جملے کے اوپر کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. دوسرے پوائنٹ میں ہم نے اس کو مینشن بھی میں نے کیا ہے کہ کوسین کے ہٹا دینے سے جملے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ پیپر کے اندر اس حوالے سے بھی MCQ آ چکا ہے کہ وہ کون سی علامت ہے جس کو ہٹانے سے بیسیکلی سینٹینس کے اوپر یا جملے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رائٹ آپشن تھا کوسین. واوین بھی انگلش کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، انورٹڈ کوماز کی صورت میں وہاں پہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ بھی اس کا یوزز بڑا کلیئر ہے، ڈسٹنکٹیو ہے، یہاں پہ بھی واضح طور پہ ایکسپلین کیا جائے گا. یہ کچھ علامت ہے جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ مقولے یا اقتباس کے اول و آخر میں لگائی جاتی ہے. کوئی بھی قول ہے اس قول کے اول و آخر میں ہم واوین لگاتے ہیں، جیسے کہ حافظ ملت نے فرمایا، اور چونکہ قول کے بعد ہمیں پتا ہے کولن لگایا جاتا ہے، تو کولن کے بعد ان کا فرمان کہ زمین کے اوپر کام اور نیچے آرام. اس کے بعد چونکہ یہ ایک کال ہے تو کال کے دونوں سائڈ پہ آپ انورٹڈ کوما لگا کے اس کو مکمل اس کا جو فارمیٹ ہے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. تو زیادہ تر انورٹڈ کوما کا جو استعمال ہے وہ کال کے اول و آخر کے اندر ہی ہے. جو ہماری نیکسٹ علامت ہے وہ خط ہے. خط کی امپورٹنس ایک اور حوالے سے بڑی زیادہ ہے، اور وہ یہ والا پوائنٹ ہے کہ یہ کامل وقفے سے زیادہ وقفے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایون فل سٹاپ سے بھی زیادہ اگر آپ نے گیپ دینا ہے تو خط کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ بھی MCQ پاس پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے، کیا کوئی ایسا علامت ہے رموز و اوقاف کے اندر جو کامل وقفے سے بھی زیادہ ہے، تو وہ اس کا رائٹ آپشن تھا خط. خط کے اندر یہ اتنی سکت ہے کہ یہ اس سے زیادہ وقفہ کریٹ کر سکتا ہے. استعمال اس کا کیا ہے کہ جملہ مترجہ کے اول و آخر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ اپنے مین جملہ کو تو ڈسکس کریں لیکن اس مین جملہ کے تشریح یا توضیح میں، یا آپ نے جو اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا اعتراض دے رہے ہیں اس کے اول و آخر میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں خط کو. جیسے کہ اگر ساجد تعلیم حاصل کر لیتا. اچھا، اب چونکہ آپ نے ساجد کے بارے میں ایک کنڈیشن رکھی، اب اس کے بعد آپ خط لگائیں اور اس میں بتائیں
आपने वो एतराज क्या किया है कि हमारी किस्मत ऐसी कहां। ये बेसिकली एतराज है कि ऐसा हो नहीं सका, या हमारी किस्मत में नहीं था कि साजिद ऐसी तालीम हासिल कर लेता। फिर इसको तकमील तक पहुंचाएं, चूंकि ये एक शर्तिया जुमला है, एक कंडीशन इसके अंदर इस्टेब्लिश की गई है, तो इस कंडीशन की तकमील जरूरी है। तो बैरूने मुल्क जाने की राह हमवार हो जाती। तो अगर आप इस जुमले को देखें तो अगर साजिद तालीम हासिल कर लेता, उसके बाद खत है दोनों तरफ, हमारी किस्मत ऐसी कहां, यानी ये मोतरिजा जुमला है और इसके स्टार्ट में भी और इसके एंड के ऊपर भी हमने खत को रखा है, तो बैरून मुल्क जाने की राह हमवार हो जाती। तो इस तरीके से इस जुमले को खत की मदद से मुकम्मल किया जाए। दूसरा अगर आप देखें यहाँ पे इसके इस्तेमाल, तो ये साबका जुमले की तशरीह या तबादले के वक्त भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, जैसा कि सारा मकान। अब ये एक छोटा सा जुमला है, सारा मकान, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। तो यहाँ पे खत लगा के उस सारे मकान में क्या क्या शामिल है उसको हम लिख सकते हैं ईंट या ईंटें, चूना, लकड़ियां, जलकर राख हो गया। यानी सारे मकान के बारे में बताया जा रहा है कि वो जल के राख हो गया, और खत में उनकी एक्सप्लेन या तशरीह की जा रही है कि सारे मकान के अंदर चीजें कौन कौन सी शामिल हैं। उसके आखिर पे मुतसाविया है। मुतसाविया असल में इक्वेशन का नाम है, इक्वालिटी का नाम है, जो मैथ के अंदर इस्तेमाल होता है। मुतसाविया बहुत आसान है, मुरक्कब अल्फाज के अज्जा बयान करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसे अल्फाज जो एक या दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने हों, उनको अलग अलग करने के लिए। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है हुस्न अफरोज के, ये वाला जो मंजर है ये हुस्न अफरोज है, या ये वाला जो शख्सियत है उसके बारे में भी कहा जा सकता है कि हुस्न अफरोज है। यहाँ पे दो हरूफ इस्तेमाल, दो अल्फाज इस्तेमाल हैं। इन दोनों अल्फाज को अगर आपने सेपरेट करना है तो इनके दरमियान में आप क्या लगाएंगे, मुतसाविया की अलामत लगाएंगे। इसमें एक हुस्न का लफ्ज था, इसको ऐड कर देंगे किसके साथ, दूसरा लफ्ज अफरोज का था, इसको के साथ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और ये है अमोज गार की। अमोज गार भी एक मुरक्कब लफ्ज है। इस मुरक्कब लफ्ज को अगर आपने सेपरेट करना है तो अगेन मुतसाविया की अलामत लगाएं, फिर अमोज और उसके बाद गार। तो इस तरीके से आप जो मुतसाविया है और खत है इनके दरमियान में डिस्टिंक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये हमारी रमूज औकाफ की वीडियो थी, जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रमूज औकाफ थे उनको डिस्कस किया, उनकी एग्जाम्पल्स की मदद से, मिसालों की मदद से वजाहत की। अगली वीडियो के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि जितनी वीडियो सीरीज जो कि आपको इस वीडियो के आखिर पे अभी नजर भी आ रही होगी, वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट इसकी उर्दू की, यहाँ से ज्यादातर एमसीक्यूज पास पेपर के अंदर पूछे गए हैं, और ये वो नोट्स हैं जिनसे प्रिपरेशन करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मैक्सिमम उर्दू का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ मंसूब रहें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि किन चीजों की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या हमें कंटेंट के ऊपर इंप्रूव करना चाहिए, या अगर किसी भी जगह पे आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई लूप होल है, कोई खामी रह गई है, तो आप जरूर मेंशन करें। मेरे लिए वो कंस्ट्रक्टिव होगी, मैं उसको अगली वीडियो के अंदर इंप्रूव करूंगा। थैंक यू।